Hello students, how are you? I hope you are fine at your home. So this is the second part of our chapter 6. If you didn't watch first part, then please first go and watch the first part of that video, then come to this part. Okay? So in this part we will start from topic number 6.2, nutrition. When we walk or ride a bicycle, we are using up energy. Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesis, protein, and other substances needed in the body. This source of energy and materials is the food we eat. Okay, whatever kind of activity we want to do, we need some kind of energy. Okay, even if we are just sitting or sleeping, at that time also our body's functionality should be continuous running. So for that we need energy. And how can we get that energy? We get that energy from external source, which is food. Okay, yes, the food which we eat, it is the our source of energy. By digestion process, that complex food will break down into simpler substances and our body will absorb that substances. Okay, you will study about how to break down and how to transport this in further topics. So next topic is how do living things get their food. मतलब जो भी living things है वो अपना food कैसे collect करते हैं. नाउ लिविंग थिंग्स में प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, ह्यूमन बींग्स आ गए, एवरी लिविंग बींग्स आर कंसिडर एंड ऑल दे हैव different type of nutrition processes. The general requirement for energy and material is common in all organisms, but it is fulfilled in different ways. Some organisms use simple food material obtained from inorganic sources of the in the form of carbon dioxide and water. These organisms, the autotrophs, include green plants and some bacteria. Okay, so one question is, what do you mean by autotrophs or autotrophic animals? So the plants or animals which make their own food by themselves are called autotrophs. Okay, and this type of nutrition is called autotrophic nutrition. So plants which make their food by the process of photosynthesis, they are called autotrophic plants. These organisms, the autotrophs, include green plants and some bacteria. There are also many bacteria which make their own food by themselves. Other organisms utilize complex substances. These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body. To achieve this, organism use biocatalysts called enzymes. देखिए, in first chapters also we have discussed about catalyst. Catalyst means any substance or any material which do not take part in that process, but it is indirectly helping to either increase or decrease the rate of reaction of this process. Okay, so इस प्रोसेस में वो लोग क्या बोलते हैं, to achieve this organisms use biocatalyst called enzymes are used. मतलब enzymes जो होते हैं वो फूड को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में से सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्पफुल करते हैं. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कैटालिस्ट. दस द heterotroph survival depends directly or indirectly on autotrophs. Heterotrophic organism include animals and fungi. ठीक है, human beings are also example of heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition means what? That type of nutrition in which the organisms are depend on some other thing for making their food, means they will not make their own food by themselves. For example, animals कोई भी ले लो तो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, वो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, तो दूसरे एनिमल्स पे वो लोग डिपेंड है. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड heterotrophic animals. Even we human beings are also, we are also doing same thing, so we are also called heterotroph. Okay, now autotrophic nutrition.
Carbon and energy requirements of the autotrophic organism are fulfilled by photosynthesis. ठीक है, आप लोगों को पहले से पढ़ते आए हो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वो लोग एब्जॉर्ब करते हैं और उसमें से ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और ये प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस. बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस plants will make their own food. It is the process by which autotrophs take in substances from the outside and convert them into stored form of energy. वो लोग सनलाइट की मदद से एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे और जो क्लोरोफिल होगा प्लांट का वो उसमें से फूड प्रिपेयर करेगा. दिस मटेरियल इज टेकन in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. Carbohydrates are utilized for providing energy to the plant. We will study how this takes place in the next session. The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch, which serves as the internal energy reserve to be used as and when required by plant. अभी प्लांट जो होता है वो डे में सिर्फ फोटोसिंथेसिस करते हैं. एट नाइट टाइम दे आर नॉट डूइंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, बट उस टाइम पे भी उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो तब वो क्या करते हैं, ये जो स्टार्च के फॉर्म में प्लांट में जो एनर्जी स्टोर हुई रहती है ना, वो स्टार्च के फॉर्म की एनर्जी को वो नाइट टाइम पे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं. A somewhat similar situation is seen in us, where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. हमारी बॉडी में भी ऐसा ही होता है. हम अब 24 घंटे खाना नहीं खाते, लेकिन जब हम खाना खाते हैं तब जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उतनी एनर्जी एब्सॉर्ब हो जाती है और बाकी की एनर्जी हमारे बॉडी में स्टोर होती रहती है, और वो एनर्जी पे हम नेक्स्ट कुछ आवर्स के लिए वो हमें एनर्जी देती है. ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना. हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड अपनी एनर्जी स्टोर करता है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन. ये आप लोगों को मस्ट है और एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं. राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर में से लेंगे और वाटर रूट्स जो होंगे वो सॉइल में से एब्जॉर्ब करेंगे, और क्लोरोफिल एंड सनलाइट वो दोनों कैटालिस्ट के तौर पे एक्ट करेंगे. देन प्लांट विल मेक ग्लूकोज, दे विल रिलीज ऑक्सीजन एंड वाटर बाय transpiration process they will release water in the atmosphere. Okay, so by photosynthesis they will make glucose which is stored, oxygen and water which will be released. Let us now see what actually happens during the process of photosynthesis. The following events occur during this process. So एक आपका क्वेश्चन होगा, राइट द शॉर्ट नोट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ठीक है, उसमें ये आपको पूरा आंसर विथ ये केमिकल इक्वेशन दोनों आपको लिखना है. एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोफिल जो होगा प्लांट के ऊपर, ये आपको प्लांट का एक डायग्राम दिया हुआ है, उस पर ग्रीन कलर का क्लोरोफिल होता है, वो प्लांट में ऊपर से एटमॉस्फेयर में से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म से. कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ना वो जो लाइट एनर्जी कन्वर्ट करेगा उसको वो केमिकल एनर्जी में सनलाइट की एनर्जी को कन्वर्ट करेगा, और अपवर्ड जो रूट में से वाटर एब्जॉर्ब किया होगा, वाटर मतलब H2O, उसमें से वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को सेपरेट करेगा. रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स. उसमें से वो जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया है उसमें से वो कार्बोहाइड्रेट्स में उसको कंप्रेस करके कन्वर्ट करेगा. These steps need not take place one after the other immediately. ये स्टेप 1 2 3 जो सीक्वेंस आपको यहाँ पे दिखाई है ऐसे सीक्वेंस में होता है, ये ज़रूरी नहीं है. मतलब पहले कोई भी हो सकता है, पहले कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बोहाइड्रेट भी बन सकता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. क्लोरोफिल ने जो भी डे में एनर्जी स्टोर की होगी उस एनर्जी की और कार्बन डाइऑक्साइड जो नाइट पे स्टोर करेगा, उन दोनों की प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती है डेजर्ट प्लांट में. ठीक है, लेट अस सी हाउ ईच ऑफ दिस कंपोनेंट्स ऑफ द अबो रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस.
Now we will study about these components, why they are necessary. If you carefully observe a cross section of a leaf under the microscope, ये जो आपको सेक्शन 6.1 में दिया हुआ है, ये साइंटिस्ट्स ने माइक्रोस्कोप में लीफ का सेक्शन रख के उसको ऑब्जर्व किया है और उन्होंने ऐसा कुछ देखा है उसमें. डोंट वरी, आपको डायग्राम ड्रॉ करना नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि उसमें कैसे वर्क होता है. You will notice that some cells contain green dots. These green dots are called organelles called chloroplast which contain chlorophyll. Yes, देखो डायग्राम में आपको क्लोरोप्लास्ट ये दिख रहा है. दिस इज क्लोरोप्लास्ट. ओके, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रीन ग्रीन कलर के आपको डॉट्स दिख रहे हैं वो सारे क्लोरोफिल्स है. Let us do an activity which demonstrate that chlorophyll is photosynthesis. Now why chlorophyll is necessary? अगर प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे. उसी को समझने के लिए आपको एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 6.1. सो वी विल स्टडी अबाउट दिस एक्टिविटी so that we can understand the importance of chlorophyll in plants. So activity 6.1, take a potted plant with variegated leaves, for example money plant or crotons. Variegated leaves, आप लोगों ने ज़्यादातर प्लांट्स के लीव्स देखे होंगे कि वो ग्रीन कलर के होते हैं पूरे के पूरे, लेकिन वेरीगेटेड लीव्स मतलब ये जो आपको डायग्राम में दिया हुआ है ऐसा कि हर पार्ट उसका ग्रीन कलर का नहीं होगा, कुछ ही पार्ट ग्रीन कलर का होगा और बाकी के पार्ट कलरलेस या येलो कलर के होंगे. उस टाइप के प्लांट को वेरीगेटेड लीव्स बोलते हैं. और उस ये मनी प्लांट और क्रोटन्स ये दोनों के वेरीगेटेड लीव्स होते हैं. कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट यूज्ड अप. उस प्लांट को आपको 3 दिनों के लिए एक बंद डार्क कमरे में रखना है जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच सकती. सो उसका जो भी स्टार्च होगा उसकी एनर्जी वो सारी यूटिलाइज हो जाएगी. नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर 6 hours. फिर उसके बाद उसको 6 घंटे के लिए सनलाइट में रखना है. प्लग अ लीफ फ्रॉम द प्लांट, मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर. फिर कोई भी प्लांट, उस प्लांट में से आपको लीफ तोड़ देना है और उस लीफ में जो जो ग्रीन प्लांट होंगे उसको आपको मार्क कर देना है. ये फॉर एग्जांपल ये फ्लावर में जैसे जैसे जितने जितने ग्रीन कलर के पार्ट है उतने पार्ट आपको मार्क कर देने हैं. Dip the leaf in boiling water for a few minutes. After this, immerse it in a beaker containing alcohol. Carefully place the above beaker in water bath and heat till the alcohol begin to boil. What happens to the color of the leaf? What is the color of solution? Now dip the leaf in dilute solution. जैसे ही आप उसको अल्कोहल में मतलब डीप करेंगे तो ऐसे जो जो ग्रीन कलर का पार्ट होगा वो आपको हाईलाइट करके दिखाई देगा. Now dip the leaf in dilute solution of iodine for few minutes. Take out the leaf and rinse off the iodine solution. Observe the color of leaf and compare this with the tracing of the leaf done in the beginning. What can you conclude about the presence of starch in various areas of the leaf? पहले जहाँ पे भी स्टार्च होगा वहाँ पे ऐसे ग्रीन कलर का होगा और फिर आप जब आयोडीन के सॉल्यूशन में इसको डीप करेंगे तब जहाँ जहाँ पर ग्रीन कलर होगा वहाँ पे आपको ब्लू कलर दिखाई देगा बिकॉज ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन. सो स्टार्च का प्रेजेंस चेक करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज होता है तो वो है आयोडीन सॉल्यूशन. आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज टू चेक वेदर लीफ कंटेन स्टार्च और नॉट. नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एब्सॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर में से वो हम स्टडी करेंगे. इन क्लास 9 वी हैड टॉक अबाउट स्टोमेटा. ठीक है, आप लोगों ने स्टोमेटा के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा. ये आपको प्लांट फ्लावर का एक सेक्शन दिया है, उसमें ये पूरा का पूरा अंदर का जो होल है ग्रीन कलर का उसको स्टोमेटा बोलते हैं. विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स. ये माइक्रोस्कोप में दिखाया है वरना ऐसे बहुत छोटे छोटे पोर्स प्लांट्स के फ्लावर लीफ के अंदर होते हैं. Massive amount of gaseous exchange take place in the leaves throughout these pores for the purpose of photosynthesis. But it is important to note here that exchange of gases occurs across the surface stems
roots, leaves as well. Since large amount of water can also be lost throughout the stomata, the plant uses these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. The opening and closing of the pore is a function of the guard cells. The guard cells swell when water flows into them, causing the stomatal pore to open. Similarly, the pore closes if the guard cells shrink. So एक क्वेश्चन ये आ गया यहाँ से यहाँ तक, हाउ गार्ड सेल आर यूज्ड फॉर द photos absorbing carbon dioxide. So the guard cells swell when water flows into them. स्वेल होंगे, स्वेल होने के साथ क्या है, वो जो गार्ड सेल ये है, स्वेलिंग के साथ ये पूरे गार्ड सेल खुल जाएंगे और वो फोर्स पैदा करेंगे ताकि ये जो स्टोमेटा का पोर्स है वो पोर्स खुल जाए। और जैसे ही उसने अपना काम कर लिया उसके बाद वो क्या करेगा, वो श्रिंक हो जाएगा और श्रिंक होके जो पोर उसने ओपन किया है वो पोर वापस से क्लोज कर देगा। सो नाइट टाइम पे वो क्लोज रहेगा और डे टाइम पे जब उसको रिक्वायरमेंट होगी लाइट की और कार्बन डाइऑक्साइड की तब उसका अपना पोर ओपन रहेगा। ठीक है, इस तरह से गार्ड सेल उसको ओपन या क्लोज करने में हेल्प करते हैं। नाउ एक्टिविटी 6.2, take two healthy potted plants which are nearly the same size, keep them in a dark room for 3 days. Now place each plant on separate glass plate. Place watch glass containing potassium hydroxide by the side of one of the plants. The potassium hydroxide is used to absorb carbon dioxide. Cover both plant with separate bell jars as shown. प्लांट को बेल जार्स में मतलब ऐसे एक कंटेनर में स्टोर कर देना है। जार मतलब जाली जैसा होता है, उसके अंदर प्लांट को कवर कर देना है। यूज वर्सेलाइन वेसलाइन to seal the bottom of the jars to the glass plates so that the setup is airtight. Keep the plants in sunlight for about 2 hours. Pluck a leaf from each plant and check for the presence of starch as in the above activity. Do both the leaves show the presence of the same amount of starch? What can you conclude from the activity? So इस एक्टिविटी में जो दोनों प्लांट होंगे, दोनों में जो फ्लावर्स होंगे वो सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च कंटेन करेंगे कि अलग अलग स्टार्च कंटेन करेंगे, वो दोनों अलग अलग स्टार्च होंगे, सभी में सेम टाइप के स्टार्च नहीं होंगे, उसकी क्वांटिटी डिफरेंट होगी। बेस्ड ऑन द टू एक्टिविटीज परफॉर्म अबव, कैन वी डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट जो होगी वो सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए एकदम एसेंशियल है। विदाउट सनलाइट यू कांट डू फोटोसिंथेसिस। So far we have talked about how autotroph meet their energy requirement, but they also need other raw materials for building their body. Water used in photosynthesis is taken up from the soil by roots in terrestrial plants. Other material like nitrogen, phosphorus, iron and magnesium are also taken up from the soil. Nitrogen is an essential element used in the synthesis of proteins and other compounds. This is taken up in the form of इन नाइट्रोजेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। ये जो नाइट्रोजन साइकिल है उसमें आपने लोगों ने पढ़ा होगा कि रूट्स जो होते हैं वो भी जो राइजोबियम बैक्टीरिया जो नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं वो नाइट्राइट्स में एब्जॉर्ब करते हैं। और इट टेक्स अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, वो नाइट्रोजनस कंपाउंड प्लांट के रूट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये पूरा नाइट्रोजन साइकिल में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, सो आज के लेक्चर के लिए यहाँ तक पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक 6.2.2 विच इज़ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जो एनिमल्स में न्यूट्रिशन होता है वो न्यूट्रिशन हम लोग नेक्स्ट टाइम पे स्टडी करेंगे। अब तक के इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर आंसर्स। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please press the like button. If you want to get more updates that whenever I update any new video you get the notification, then please subscribe this channel. And please, if you want, you feel that your friends should also learn, then please share this video with your class 10 friends also. Okay, so see you in the next lecture. Okay, bye.